Good morning, students. In this lecture, we will study law of variable proportion or returns to a factor. What is law of variable proportion? Proportion means ratio, variable means variable factor. So, variable factors का fixed factors के साथ change कैसे effect डालेगा? So, what is variable proportion? It means as more and more variable factor are combined with fixed factor always remain constant. So, as more and more variable factor are combined with fixed factor, then marginal product in starting may be rise. In starting, marginal product may be rise. Then a point will come or a situation will come where the marginal product will be declining. Then it come at zero. Then it come at negative. That is the law of variable proportion. In short, as more and more variable factor are combined with fixed factor, then initially marginal product may be increasing, then it come decreasing, then it come at zero, and then it come at it will be negative. For example, while producing wheat, a farmer has land as a fixed factor. Land has a fixed factor or has some variable factor. So how can he increase his production? He can increase his production when he increase his variable factors with fixed land. जब वो अपने फिक्स लैंड पर, उसके पास कुछ लैंड है, जब वो इस फिक्स लैंड पर वेरिएबल फैक्टर, फॉर एग्जांपल हिज वेरिएबल फैक्टर इज लेबर, जब वो इस लैंड पर अपनी लेबर को इंक्रीज करता जाएगा तब वो क्या करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है. लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, बट एक पॉइंट कम ऐसे जरूर आएगा या एक सिचुएशन ऐसी जरूर आएगी जहां पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर, जहां पर लेबर एक्सेसिव में होती जाएगी, मीन्स नीड तो है यहाँ पे 50 लेबर्स की, लेकिन इस लैंड पर नीड तो है 50 लेबर्स की, लेकिन उसने 50 से ज़्यादा 60 लगा दी या 55 लगा दी, नीड से ज़्यादा लगा दी ना, ओवर एक्सप्लोटेशन हो गया. तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी. या फिर क्यों इनफेक्टिव यूजेस ऑफ लेबर या इनफेक्टिव यूजेस ऑफ वेरिएबल फैक्टर विल रिजल्ट एट डिक्लाइनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ or it will become at zero. Now from this table you can understand here unit of land is a fixed factor, always remain constant. Then labor, first starting में labor 1 थी, then 2, labor is or variable factor is increasing. Then when variable factor is increasing, then total product is 1 at 1 it is 2, then 2 per 5, 3 per 9, 4 per 12, then 5 per 14, 6 per 15, then 7 per 15. जैसे जैसे हम अपनी लेबर को वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया है, इन स्टार्टिंग इट इज इंक्रीजिंग, देन इट इज कांस्टेंट एंड देन इट इज नेगेटिव. विद इट मार्जिनल प्रोडक्ट इज, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट. 2 minus 0 2, 5 minus 2 3, then 9 minus this 4, 9 minus 5 4, 12 minus 9 3, then 5 minus 5 0, and 14 minus 15 minus 1. So we are understanding from this that marginal product, it may be increasing at starting, but a situation will come where it go decreasing and then it come at zero and then it go at a negative point. That is law of variable proportion. From this diagram we can understand law of variable proportion in increasing return, decreasing return, or diminishing or negative return. When in starting total product is increasing, then marginal product it may be increasing. When total product is at constant, then marginal product is come at zero and it is declining at come at 0. When total product is decreasing, then marginal product is at negative. That is the relation between total product and marginal product. Now, what are the causes of increasing returns to a factor?
हमने पहले पढ़ा था कि इन स्टार्टिंग टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, इट मे बी इंक्रीजिंग, देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसके इंक्रीज होने के क्या रीजंस हैं. फर्स्ट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मीन्स फिक्स फैक्टर को फुलर यूटिलाइज. हमने एक लास्ट एग्जाम्पल में रीड किया था कि हमारे पास फिक्स फैक्टर है लैंड. जब हम लैंड पर इन स्टार्टिंग हमने 40 लेबर लगाई, जबकि रिक्वायरमेंट 40 की नहीं थी, रिक्वायरमेंट हमारी कितने की थी, 50 की. हमने 40 की लगाई तो हमने फुल यूटिलाइजेशन इसका मतलब इट मीन्स नहीं किया था. सपोज हमने अपनी लैंड को फुल यूटिलाइज नहीं किया था, फिर हमने क्या किया, हमने अपनी लैंड को फुलर यूटिलाइज किया. जब हम फुलर यूटिलाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रिटर्न्स क्या होगी, इट विल बी increasing. Then division of labor and increase in efficiency. If we appoint our labor according to their efficiency or according to their specialization, then it will increase our return, it will increase our efficiency, work efficiency. Then third point is better coordination between the factors. There are two factors, variable factor and fixed factor. Fixed factor, when there is a better coordination between variable और fixed factor, it means variable factor fixed factor के साथ ज़्यादा excessive में भी मत हो ना हो और कम भी मत हो. मीन्स जहाँ जितने की रिक्वायरमेंट है वेरिएबल फैक्टर की फिक्स फैक्टर के साथ उतना ही हो. फॉर एग्जांपल एक फिक्स लैंड पर अगर 50 लेबर की रिक्वायरमेंट है लेकिन हमने उसे 40 लगा रखे या फिर 60 लगा रखे, तो कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं होगा. तो अगर हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स का फिक्स फैक्टर के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन कर दे तो रिटर्न भी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, अच्छी होगी रिटर्न. दैट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. हमने ये रीड किया था कि टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट होकर डिक्रीज होती है और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पर पहुंच जाती है, देन नेगेटिव हो जाती है. तो उसके रीजंस क्या है. फर्स्ट इज फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर. We know that there are fixed factor. Then if there are fixed factors, for example land is fixed but we are increasing our variable factor, means अगर हम variable factor का exploitation कर दे इन fixed factor पे, इस land पर हम variable factor का exploitation कर दे, तो उससे क्या होगा, हमारी रिटर्न अच्छी नहीं होगी, efficiency नहीं होगी वर्क में. Second, imperfect factor substitutability, means if we कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने एक फैक्टर का सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते हैं दूसरे में, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता, मीन्स वो सही एफिशिएंसी नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो उससे क्या होता है, रिटर्न क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. थर्ड, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर. समटाइम देयर आर पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर. फॉर एग्जांपल कई बार हमारी लेबर एफिशिएंट नहीं होती या फिर लेबर अकॉर्डिंग टू वर्क अपॉइंट नहीं होती, जो वर्क वो कर सकती है उसके अकॉर्डिंग वो अपॉइंट नहीं होती, तो उससे क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स के बीच में. सो उससे क्या होती है, हमारी रिटर्न क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है. दीज आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. नाउ व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ दिस लॉ. अभी हमने किया कि व्हाट इज द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. वेरिएबल प्रोपोर्शन में इसकी कुछ अजम्पशंस है, हर लॉ की कुछ अजम्पशंस होती है. देन व्हाट आर दीज अजम्पशंस. फर्स्ट, ratio in which factors of production are combined can be changed. कि वो रेशियो जिनमें फैक्टर्स कंबाइन किए जा रहे हैं उनकी रेशियो को चेंज किया जाता है. yes, we can change our variable factors, it may be increase or decrease. then second, unit of variable factor are homogeneous और equally efficient. हम ये लेट करके चलते हैं कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है, हमारी लेबर है, वो इक्वली एफिशिएंट है, मीन्स इक्वली वर्क प्रोवाइड कर रही है और सारे ही एफिशिएंट है. थर्ड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, मीन्स जो हमने प्लांट इंस्टॉल किया है या फिर हमारा जो फिक्स फैक्टर लैंड है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ. पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ मीन्स ब्रेक, कि ये हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब ब्रेक हो जाता है. अभी हमने कुछ अजम्पशंस रीड की थी, जहाँ पर वो अजम्पशंस अप्लाई ना हो तब वो हमारा लॉ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट इज when there is improvement in the technology. हमने भी एक assumptions रीड की थी कि टेक्नोलॉजी की पोजीशन, टेक्नोलॉजी की जो कंडीशन है वो सिमिलर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, कई बार कोई प्रोड्यूसर क्या करता है, इन द मिड ऑफ द ईयर और मिड ऑफ द वर्क टेक्नोलॉजी की क्या देता है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर देता है.
न्यू प्लांट इंस्टॉल कर दिया या फिर न्यू अपडेट कर दिया प्लांट को, तो उससे क्या होगा, वर्क एफिशिएंट हो जाएगा, बीच में ही अप टू डेट वर्क हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्क में अनबैलेंस हो जाएगा, मीन्स वर्क पहले से एफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड, व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर इज डिस्कवर्ड। कई बार हम क्या करते हैं, हमें फिक्स फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, तो उस केस में क्या होता है, फिक्स फैक्टर की जो लिमिट्स है, कंसंट्रेट मीन्स लिमिट्स है, वो रिमूव्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो लैंड है, लैंड या फिर प्लांट, लैंड या प्लांट हमारा क्या है, फिक्स फैक्टर है, हमारा फिक्स है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस फिक्स फैक्टर मीन्स हमारे प्लांट को हम चेंज कर देते हैं बीच में, या फिर उस प्लांट की जगह हमें कोई और न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हम वो इंस्टॉल करते हैं, या फिर हमारी लेबर है, हम अपनी लेबर को चेंज करके लेबर का वर्क भी किस पे करते हैं, प्लांट पे। तो उससे क्या होता है, हमारे वर्क में क्या होगा, थोड़ा अनबैलेंस होगा। लेकिन ये होता नहीं है, दिस केस इज वेरी रेयर, इट इज इम्पॉसिबल। दैट इज लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन दिस वी विल रीड लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मीनिंग, एग्जाम्पल, टेबल, देन diagram, then its causes of increasing return and its causes of decreasing return. That is law variable proportion. Thank you.